Hi guys, I would like to welcome you all people in PM365 and in this particular video this is going to be a very simple video and but with a whole information how exactly you can start a sample schedule, a simple sample and a simple schedule, 4 लाइन का program, 10 लाइन का program. Just if you wish to have a start, just for the sake of starting a new schedule in Microsoft project, how exactly you are going to do so, ये step by step, one by one हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. And I'm expecting that my audience, my friends, my friends are already having installed this software on your system, machine पर already installed है. और अगर नहीं है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा where I'm going to show you how exactly you can install Microsoft Project having free downloaded on your system. So I'm just going to start this video and uh, other than this slide I'm going to start this window of uh, Microsoft Project. So let us click this. Okay, here you are. So first of all, just for the sake of understanding, I'm just going to close each and everything. The moment जैसे ही आप Microsoft Project जब आपके पास इंस्टॉल हो चुका है, आइकन पे जाकर के जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं तो दिस विंडो यू आर गोइंग टू सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देना चाहूँगा कि दिस इज वेरी मच सिमिलर टू एक्सेल इन लुक एंड फील. देखने में और ऑपरेट करने में काफ़ी हद तक एक्सेल से मैच करता है. फाइल में जाना है, फाइल में जाकर के हम न्यू पर क्लिक करते हैं. लेट अस सी blank project and say create. So this way you are going to see several columns you are going to see. जो columns मेरे काम के नहीं है, सबसे पहले इन columns को हम hide कर देते हैं. So how you are going to do this? यहाँ पर क्लिक करेंगे, किसी भी column पर क्लिक करेंगे, that way right click and hide. That's it. Right click and hide. That's it. This is this task mode. मुझे जरूरत नहीं है, इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ. So you can see the number of cells are there, number of columns are there. I mean number of rows are there and number of columns are there. Let's say now either of the way you can start the project. I'm assuming just for the sake of understanding and just to keep the session very simple. If you are in nuclear sector, आप nuclear sector के according schedule बना सकते हैं. If you are in thermal sector, you are in solar power project, you are in civil construction, you are in airport ways, I mean multiple projects you might be handling. And किसी भी project की मैं activities लेने के बजाय मैं 4 activities को define करने की कोशिश करता हूँ. Let us say first activity हमारी है, एक project का नाम हम रखते हैं. सबसे पहले project का नाम मैं रख देता हूँ project 1. Let us say project 1. Project 1 Engineering Procurement Construction EPC. And under this project I'm having only 5 activities. Say A, B, C, D and E. These are the 5 activities I'm going to have in my project. It may be engineering, it may be related to civil, it may be related to site mobilization, it may be related to piling, it may be related to AC work, DC work, switchyard, transmission lines. So I'm not specifying the number of activities, type of activities, but just for the sake of sample, I have considered 5 activities under this project EPC. So since this A, B, C, D, E activities are falling under the प्रोजेक्ट EPC, तो सबसे पहले एक काम करना होगा, चारों को हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पर एक बटन आप देखेंगे. यू कैन सी वेयर इज माई माउस राइट नाउ. दिस इज कॉल्ड इंडेंट एंड दिस इज इंडेंट एंड दिस इज आउटडेंट. आउटडेंट करने से बाहर की तरफ ग्रुपिंग में आता है और अगर इंडेंट किया तो ये सारी की सारी पांचों एक्टिविटीज प्रोजेक्ट 1 EPC के अंतर्गत चली जाएंगी, मतलब इसके अंडर में चली जाएंगी. लेट अस से मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, इंडेंट टास्क करके देखते हैं. That way. So A, B, C, D, E, you can see now these are the part of this project 1, project EPC.
ऑल्दो राइट नाउ। अच्छा, एक चीज और बता देना चाहूंगा कि बाय डिफॉल्ट कई केसेस में ऐसा हो सकता है, जैसे कि आप ए को क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक मोड दिखाई देता है आपको, मैनुअल और ऑटो। So by default, whenever we are going to insert either of the activity, by default the mode is manual. So the system, the MSP understand that कि manually as a user, as a scheduler आप उसको manually schedule करोगे. So ultimately मेरी suggestion ये रहेगी कि जैसे ही आप किसी activity को insert करते हो, the same time you must do this. यहाँ पर जाना है आपको, ऑटो शेड्यूल को क्लिक करना है, दैट वे। सो मैं एक साथ सारी एक्टिविटीज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऑटो शेड्यूल को क्लिक कर देता हूँ। सो दिस वे राइट साइड में आप देखेंगे कि जो टाइम फ्रेम मेरी एक गैंट चार्ट मुझे दिखाई दे रही है, उस गैंट चार्ट के बारे में आगे डिस्कशन हम करते हैं। और आगे चलने के पहले एक चीज मैं क्लियरफाई करना चाहूंगा कि यहाँ पर दो कॉलम आपको दिखाई देंगे। देखिएगा, एक कॉलम है टास्क, दूसरे कॉलम में आप ड्यूरेशन स्पेसिफाई करेंगे, जो भी ड्यूरेशन हो जाएगा आपका। जैसे फॉर एग्जांपल हमें अगर पता है पहले से, तो हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं, ए एक्टिविटी में 10 दिन लगने वाले हैं, बी एक्टिविटी में 5 दिन लगने वाले हैं, सी एक्टिविटी मेरे ड्यूरेशन है 10 दिन का, डी एक्टिविटी मेरी 20 डेज की एक्टिविटीज है, ड्यूरेशन में मैंने 20 डाल दिया, ई एक्टिविटी लास्ट एक्टिविटी, और ये मेरी 5 दिन की एक्टिविटी है, मैंने 5 दिन डाल दिया। अब देखिएगा, यहाँ पर एक चीज क्लियर करना मैं चाहूंगा कि लास्ट एक्टिविटी और फर्स्ट एक्टिविटी हमारे केस में है ए। इस एक्टिविटी को नॉर्मली हमें जो करना होता है कि other activities means activities in MSP schedule, or let it be any computer aided planning tool, it may be Primavera also, but the activities are logically dependent on each other. This we call it as a relationship. जैसे कि B के साथ A की क्या रिलेशनशिप है, C के साथ B की क्या रिलेशनशिप है। तो हो सकता है कि बी के केस में आप स्पेसिफाई करना चाहें कि बी एक्टिविटी मेरी तभी शुरू हो सकती है जब मेरी ए एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो प्रीडिसेसर नाम का जो कॉलम आपको देख पा रहे हैं बिनू, इस प्रीडिसेसर कॉलम में आपको स्पेसिफाई करना होता है कि कौन सी एक्टिविटी के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल, बी एक्टिविटी के साथ अगर मैं चाहता हूँ कि ए एक्टिविटी जब फिनिश हो जाएगी उसके बाद ही बी एक्टिविटी शुरू होनी चाहिए, इफ दिस वे आई वांट, देन यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप देना होगी। प्रीडिसेसर कॉलम में आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो जाकर के। सो यहाँ पर मैं मान लीजिए ए के साथ में रिलेशनशिप है, तो 2 मैंने प्रेस करना है, 2FS। अच्छा, मैं बता देना चाहूंगा 2FS आप प्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बी एक्टिविटी स्टार्ट तब होगी when and only when A gets completed, and by default फिनिश टू स्टार्ट ही माना जाता है रिलेशनशिप 4 तरह की होती हैं। कहाँ जाके देखना है, मैं 4 याद करवाऊंगा आपको, आप याद करोगे, लिखेंगे। इससे अच्छा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ दिस सेशन हम देखते हुए चलेंगे कहाँ पे कौन सी रिलेशनशिप मुझे मिलने वाली है, राइट। सो एंटर करके देखते हैं क्या होता है, दैट वे। तो मैंने बताया था आपको कि 2FS मैंने लिखा था, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्योंकि फिनिश टू स्टार्ट बाय डिफॉल्ट रिलेशनशिप होती है, तो बाय डिफॉल्ट वो 2 एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब FS को उसने बाय डिफॉल्ट हटा दिया है। नेक्स्ट मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको ए एक्टिविटी के बारे में। अब ए एक्टिविटी को किसके ऊपर मैं डिपेंड करूं, जैसे कि बी को तो आपने लिंक कर दिया ए के साथ में, मतलब ए का आईडी क्या है 2। अब आईडी कहाँ दिखाई देता है, तो ये देखिएगा, द वे यू कैन सी इन रो के जैसे आईडी दिखाई देते हैं एक्सेल शीट में, द सिमिलर वे यहाँ पर आपको आईडी दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। परफेक्ट, समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं ए के केस में, लेकिन हम किसके साथ इसको बिठाएं, किसके साथ में इसकी रिलेशनशिप सेट करें। तो मैं जो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि इन ईदर ऑफ द प्रोजेक्ट, किसी भी दुनिया के किसी भी प्रोजेक्ट को आप डेवलप करने की बात जब करेंगे रिलेटेड टू एनी सेक्टर, तो फर्स्ट एक्टिविटी जो होगी, जिसे हम कई कॉर्पोरेट में 0 डेट बोलते हैं, वो नोटिस टू प्रोसीड हो सकती है, NTP हो सकती है आपकी, LOA डेट हो सकती है, साइट मोबिलाइजेशन हो सकती है, इट डिपेंड्स, या कस्टमर से लैंड एक्विजिशन हुआ वो 0 डेट हो सकती है, लेट इट बी एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। बट फर्स्ट एक्टिविटी जो है ए जो है, वो जो 0 डेट है, जो इस शेड्यूल की
फर्स्ट डेट है, जीरो डेट है, उस डेट को आप कैसे सेट करते हैं? तो उसके लिए आपको इसको डबल क्लिक करके देखना है, हमें कांस्टेंट सेट करना होगा। डबल क्लिक करके देखता हूँ इसमें। अब डबल क्लिक करके देखते हैं तो ये विंडो आपको दिखाई देगी, विच इज कॉल्ड टास्क इन्फॉर्मेशन। जिस टास्क पर डबल क्लिक करेंगे उस टास्क की इन्फॉर्मेशन आएगी। जनरल में आप देखेंगे ए है, परसेंटेज है, लॉट ऑफ थिंग्स आते हैं, स्टार्ट फिनिश दिखाई दे रहा है। हमें डायरेक्टली प्रेडिसेसर में जाकर देख सकते हैं, रिसोर्सेज में जाके देख सकते हैं, एडवांस में जाना है हमें। और यहाँ पर ये जो डेडलाइन दिखाई दे रहा है, ये डेडलाइन ये देखिएगा, कांस्टेंट टाइप। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि फर्स्ट एक्टिविटी को मुझे कांस्टेंट सेट करना होगा। कांस्टेंट से मतलब क्या है? कांस्टेंट का मतलब जीरो डेट सेट करना होगा। कांस्टेंट विल टेल द सिस्टम कि भाई साहब कब चालू करना है। तो यहां पर देखेंगे मस्ट फिनिश ऑन आ रहा है, मस्ट स्टार्ट ऑन आ रहा है, फिनिश नो अर्लियर देन आ रहा है, फिनिश नो लेटर देन आ रहा है। इन डिटेल each and everything we are going to discuss in next video, but मैं यहाँ पर आपको सिर्फ सैंपल के तौर पर बता रहा हूँ कि must start on करके हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। must start on का मतलब होगा कि उस पर्टिकुलर डेट को this a activity is going to be started, so let us say must start on। आज है 9th of June, तो चलो इसको हम सेट कर देते हैं 15th of June पर। let us see 15th of June, okay, all right, so must start on which date? 15th of June, say okay। So now it is going to be started on 15th of June और 10 दिन की एक्टिविटी है। So accordingly ये 26 जून तक जा रही है। अच्छा, इस एक्टिविटी में देखेंगे प्रेडिसेसर हमने कुछ नहीं दिया, प्रेडिसेसर देने की इसमें कोई आवश्यकता भी नहीं है। बी एक्टिविटी में जाकर के हम देखते हैं एक बार, बी एक्टिविटी को भी डबल क्लिक करके देखते हैं। चलिए ठीक है, मैं बता देना चाह रहा हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, मैं डबल क्लिक करके देख रहा हूँ, अदरवाइज मुझे बहुत कम जरूरत होती है इसमें जाकर के करने की। मैं कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ अपनी जरूरत के हिसाब से, और उन कॉलम्स के अकॉर्डिंगली, जैसे कि यहाँ पर प्रेडिसेसर दिखाई दे रहा है, तो प्रेडिसेसर का कॉलम ऑलरेडी आपने देखा, इंसर्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, यू कैन सी हियर, राइट। रिसोर्सेज का भी ऐड कर सकते हैं, इसी तरह से हम काम चला सकते हैं, लेकिन फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मैं डबल क्लिक करके बता रहा हूँ। तो देखिएगा बी जनरल में हमें दिखाई दे रहा है, बी जो एक्टिविटी का नाम है वो है बी, राइट। कांस्टेंट टाइप एज सच कुछ नहीं है, एज सुन एज पॉसिबल है, और किसी एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम इफ योर शेड्यूल और पर्टिकुलर एक्टिविटी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, और आपको लग रहा है कि मेल फंक्शनिंग जैसा कुछ हो रहा है, या ड्यूरेशन की कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हो रही है, समटाइम्स यू मे कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। अगर ऐसा कभी लगता है तो डबल क्लिक कीजिए एक्टिविटी पर जाकर, एडवांस्ड में जाइए, कांस्टेंट टाइप देखिए, ये जरूर कुछ गड़बड़ यहाँ पर हो सकती है। इट शुड बी एज सून एज पॉसिबल द टाइम यू आर डेवलपिंग योर शेड्यूल, राइट राइट फ्रेंड्स, से ओके ना, ओके कर सकते हैं। लेकिन एक बार मैं प्रेडिसेसर में ले जाके दिखाना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखने से आपको दिखाई देगा कि बी एक्टिविटी का प्रेडिसेसर कौन है, उसका क्या नाम है। उसका नाम है ए और उसका आईडी क्या है 2। कैसे पता? ये देखिएगा, ए को हमने रिलेशनशिप में ऐड किया था, राइट। सो ए का आईडी 2 है, 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, टास्क नेम में प्रेडिसेसर का नाम लिखा हुआ है जो कि ए है। रिलेशनशिप किस तरह की है? वो है फिनिश टू स्टार्ट, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एफएस। चलिए क्लिक करके देखते हैं एक बार। ये हियर यू आर। सो कैन आई से फॉर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इट अंडरस्टैंड 4 टाइप ऑफ रिलेशनशिप। वैसे प्राइमवेरा भी यही समझता है, एंड प्राइमवेरा में भी यही 4 तरह की रिलेशनशिप होती है। इनफैक्ट PMBOK, जिसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज आप बोलते हैं, सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज में भी 4 तरह की रिलेशनशिप शेड्यूल मैनेजमेंट में डिस्क्राइब की गई हैं। क्या क्या 4 तरह की होती है? फिनिश टू स्टार्ट नंबर 1, स्टार्ट टू स्टार्ट नंबर 2, फिनिश टू फिनिश 3, नंबर 4 स्टार्ट टू फिनिश। फिनिश टू स्टार्ट का मतलब नाम से जाहिर है। फिनिश टू स्टार्ट के साथ अगर मान लीजिए किसी 2 एक्टिविटी ए और बी में फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप है, इसका मतलब है ए फिनिश होने के बाद बी शुरू होगी, बी स्टार्ट होगी। स्टार्ट टू स्टार्ट अगर होता ए और बी के बीच में, तो इसका मतलब क्या? जैसे ही द मोमेंट ए गेटिंग स्टार्टेड, द सेम टाइम, द सेम डे बी इज गोइंग टू बी स्टार्टेड। फिनिश टू फिनिश का मतलब क्या होता? अगर ए और बी में रिलेशनशिप कुछ इस तरह से है कि वहां पर FF लिखा हुआ है,
rather than FF लिखा हुआ है finish to finish, इसका मतलब हुआ कि the time A is going to be finished off the same time B would be finished off, मतलब A और B सेम टाइम में फिनिश होने वाली है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, 4 तरह की एक्टिविटीज यहाँ पर रिलेशनशिप शो की गई हैं। अच्छा चलिए ठीक है, तो FS हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ये जो लैग दिखाई दे रहा है, समटाइम्स पीपल से डिले या इसे लैग कहते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि भाई ए खत्म हो रही है 26 जून को और 26 जून के 2 दिन के बाद चालू होनी चाहिए, 3 दिन के बाद चालू होनी चाहिए, तो डिले देने के लिए आप यहाँ पर नंबर ऑफ डेज ऐड कर सकते हैं दिस वे, राइट। तो या तो तरीका है कि इस तरीके से ऐड कर दें। वहां ऐड करते ही आप देखेंगे यहाँ प्रीडिसेसर कॉलम में थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले 2FS था, तो FS को उसने हाइड कर दिया था, साइलेंट कर दिया था। लेकिन जैसे ही आपने डिले और ड्यूरेशन दिया, वहां पर लैग पीरियड दिया, तो यहाँ पर 2FS प्लस 7 डेज शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि B विल बी स्टार्टेड हैविंग कंप्लीटेड A एक्टिविटी प्लस 7 डेज, मतलब जब A खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, उसके 7 दिन के बाद B चालू होने वाली है। So this is the way it understand, and this is the way your Microsoft project is going to calculate the start date of successor activity। अब ये successor कौन सी होती है? जैसे कि B पर अगर आप खड़े हुए हैं, let me stand here, I'm just going to highlight 3 number। So अगर मैं B पर खड़ा हुआ हूं तो predecessor कौन हुआ मेरा? A। चलिए ठीक है। और अगर मैं A पर खड़ा हुआ हूँ, A एक्टिविटी पर के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बातचीत करता हूँ, तो सक्सेसर एक्टिविटी कौन हुई? ऑब्वियसली B। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट मी इंट्रोड्यूस अनदर कॉलम से। अच्छा एक बात बता देता हूँ, जैसे कि एक्सेल में आप इंसर्ट करते हैं कॉलम, वैसे ही राइट क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं, बट यहाँ पर टिपिकल कुछ कॉलम्स हैं। नेक्स्ट स्टेज या नेक्स्ट वीडियो तक आप भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। मैं सक्सेसर नाम के कॉलम को इंसर्ट कर रहा हूं, तो मैंने सक्सेसर टाइप किया, ये कॉलम ऐड हो गया। अंडरस्टैंडिंग ये है कि नॉर्मली प्रीडिसेसर को पहले रखा जाता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट मैं ऐसा रखता हूं फॉर माय बेटर अंडरस्टैंडिंग, और आप भी इसको फॉलो करेंगे। चलते हैं आगे। तो प्रीडिसेसर और सक्सेसर, तो ए पर जब मैं खड़े होकर देख रहा हूं, तो ए पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इस ए का सक्सेसर कौन है, तो बता रहा है कि 3 है। 3 कैसे है? 3FS प्लस 7 डेज, मतलब 3 कब शुरू होगा? जब A खत्म हो जाएगा उसके 7 दिन के बाद, राइट, दिस वे। अच्छा, अब आगे रिलेशनशिप मैं सेट करूं उसके पहले मैं एक इम्पोर्टेंट चीज, एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूं। वो ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे ये जो टाइम स्केल दिखाई दे रही है, जो बार चार्ट दिखाई दे रहा है राइट स्पैन में, यहाँ पर सेट दिस इज मंडे, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Saturday and Sunday you can see this is highlighted in gray color. Gray color का मतलब है नॉन वर्किंग डे। सो इसका मतलब ये हुआ कि the type of calendar we are using right now by default it is set in this calendar, Saturday and Sunday is set as non working day। जबकि हमारे कंट्री में बातचीत करेंगे तो मुझे वीक 7 डेज वर्किंग कैलेंडर सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपके कंपनी में, मेरी कंपनी में 7 दिन की वर्किंग का ट्रेंड हो, तो साइट पर 7 दिन मेरा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चलने वाला है, तो मुझे कैलेंडर सेट करना होगा। बाय डिफॉल्ट मैंने बताया कि कैलेंडर जो सेट है बाय डिफॉल्ट वो है 5 डेज वर्किंग का। चलिए ठीक है, तो कैलेंडर डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होगी, चलिए चलते हैं आगे। सो कैलेंडर डिफाइन करने के लिए मैं प्रोजेक्ट में जाता हूँ, यहाँ देख रहे हैं आप चेंज वर्किंग टाइम, चेंज वर्किंग टाइम में क्लिक किया मैंने। आई एम गोइंग टू क्रिएट माई ऑन कैलेंडर। बाय डिफॉल्ट देखेंगे क्या है, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट कैलेंडर बाय डिफॉल्ट है। क्रिएट न्यू कैलेंडर में करता हूँ, चलिए ठीक है। कैलेंडर का नाम मैं प्रोजेक्ट 1 EPC रख देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। प्रोजेक्ट 1 EPC प्रोजेक्ट के नाम पर ही मैंने कैलेंडर रख दिया। मेक अ कॉपी और न्यू कैलेंडर, नहीं मुझे किसी की कॉपी नहीं बनाना है, मुझे तो न्यू कैलेंडर डिफाइन करना है। चलिए ठीक है, ओके। तो ये मेरा प्रोजेक्ट देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं प्रोजेक्ट 1 EPC कैलेंडर डिफाइन हो गया है। अच्छा, लेकिन इस कैलेंडर में भी अभी भी बाय डिफॉल्ट वही है, सैटरडे संडे आप ग्रे कलर में देख रहे हैं। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि सैटरडे संडे ग्रे कलर में है, तो सैटरडे संडे नॉन वर्किंग डे है। चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं, नीचे आते हैं।
नीचे आने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक्सेप्शन एक दिखाई दे रहा है, एक्सेप्शन को बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। वर्क वीक को देखते हैं, वर्क वीक में क्या दिखाई दे रहा है दिस में। चलिए वर्क वीक में जाकर के देखते हैं, डिटेल क्लिक कर रहा हूँ मैं। देखिए इसको क्लिक किया, उसके बाद मैंने डिटेल को क्लिक करके देखता हूँ। डिटेल में गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमिंग क्या है, याद रखिएगा 8 to 12 एंड 1 to 5 PM फ्राइडे तक है। सैटरडे का देखते हैं, सैटरडे को कुछ नहीं टाइम है, सैटरडे को कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि नॉन वर्किंग है। चलिए ठीक है, दोनों को सेलेक्ट कर लिया, सैटरडे संडे को वर्किंग कर देते हैं। कैसे करेंगे, सेट डेज टू दिस स्पेसिफिक वर्किंग टाइम, टाइम सेट कर देते हैं हम यहाँ पर जा करके, टाइम सेट कर देते हैं 08 to something wrong. क्या दिक्कत कर रहा है, दिस वैल्यू इज नॉट वैलिड इन दिस सिचुएशन, क्लिक द फील्ड टू सी इफ it required text, a date, number, and that you type the information correctly. Why it is creating problem, guys? देखिए आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। मैं फिलहाल इसको कैंसिल करता हूँ। अरे भाई चले जाओ यहाँ से। ठीक है, अच्छा चलिए, अच्छा AM PM में एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, so by default it will list, okay you can see here 8 AM 12 PM 1 PM to 5 PM this way, I understood that। PM लिखना जरूरी है भैया, देख लो यहाँ पर 8 PM Saturday Sunday and let's set now 8 AM। अरे अब क्या हुआ भाई, क्यों दिक्कत कर रहे हो? ओहो डॉट लगाना, अरे दूसरा लैपटॉप पर मेरे, इन माई अदर यू नो इन माई अदर लैपटॉप दिस वे इट इज नॉट टेकिंग एनीवे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए कर रहा, आप पहले जाके, बहुत सिंपल तरीका देखिए बता देता हूँ, द वे इट इज रिटन हियर, ठीक है जी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है द सेम वे यू कैन राइट डाउन। एक बार देख लो फॉर्मेट क्या है, 1.00 PM दिस वे यू हैव टू सेट हियर आल्सो, ठीक है, सेट हियर 8.00 देन AM, देखिए आ गया, ठीक है जी। कहाँ तक था, इसको F2 दबाने से भी काम करता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जैसे एक्सेल में काम करता है। तो 8 to कितना बजे तक करना हमको, 1 PM तक कर देते हैं, ठीक है 1 PM, ओके ठीक है। एंड सेकंड क्या करेंगे फिर, 2 PM से कर देते हैं, 2 PM से कितना, F2 करते हैं कितना तक, मुझे सैटरडे संडे को से 2 से लेके 5 बजे तक काम करना है, तो 5 PM कर दिया, ओके दैट्स इट राइट। नाउ यू कैन सी इन दिस कैलेंडर, इन दिस पर्टिकुलर जून मंथ के कैलेंडर में देखते हैं, सैटरडे संडे जो पहले आपका
नॉन वर्किंग डे था, अभी वर्किंग डे हो गया। अभी एक्सेप्शन नाम की चीज क्या होती है? एक्सेप्शन का मतलब देखिए बता देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल 15th ऑफ अगस्त मैं चाहता हूँ कि एक्सेप्शनली जो भी मंडे संडे जो भी उस दिन होगा उस दिन छुट्टी होगा। सो दैट वे आई मीन यहाँ पर आप बता सकते हैं, एक्सेप्शनली एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए डिफाइन करते हैं, इसका नाम रख देते हैं 15th ऑफ अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त की छुट्टी है। चलो ठीक है, तो यहाँ जाकर के सेट करना होगा आपको, डेट सेट करनी होगी। यहाँ जाके काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। सो कब शुरू होगा ये? 15 अगस्त को शुरू होगा, 15 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। चलो ठीक है, 15 ऑफ अगस्त, दैट्स इट, एक ही दिन का काम है, 15 अगस्त। अच्छा, कई बार आपको यू में कम अक्रॉस सच काइंड ऑफ सिचुएशन ऑल्सो कि बारिश का टाइम है, मानसून कैलेंडर आप डिफाइन करना चाहते हैं, तो मानसून के केस में आपके वर्किंग आवर्स उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी। 3 महीने मानसून चलने वाला है, तो 90 डेज वो आपको जो प्रोडक्टिविटी मिलेगी पर डे, आपको 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा की प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी, बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस और बेस्ड ऑन पास्ट वेदर रिपोर्ट और वेदर फोरकास्ट। तो आई मीन इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं अपने एक्सेप्शनल डेज को, राइट गाइस? सो चलते हैं, ओके करते हैं यहाँ से, ओके वाओ। अरे बट अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम हियर, सैटरडे संडे इज स्टिल नॉन वर्किंग। चलिए ठीक है, सैटरडे संडे को यहाँ जाके सेट करते हैं, एक बार देखते हैं नॉन वर्किंग में जाकर के देखते हैं क्या है। तो नॉन वर्किंग में जाकर के देखा, यहाँ पर देखिए अभी बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड को ले रहा है, हम इसको हमारे प्रोजेक्ट का नाम आ गया है यहाँ पर, प्रोजेक्ट 1 ईपीसी। लेट अस गो से ओके नाउ, वाओ नाउ इट्स ओके। सैटरडे संडे नो वर्किंग डे हट चुका है, नाउ सैटरडे संडे इज परफेक्टली वर्किंग डे। ओके फाइन। चलिए डेज कैलकुलेशन में आगे चलूँ मैं, उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करवाना चाहूँगा। यहाँ पर चलते हैं प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। देखिए प्रोजेक्ट में आप भूलिएगा मत, टास्क में अगर हैं तो वो ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट में जाना है, कैलेंडर चेंज कर दिया आपने, उसके बाद प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में जाके एक बार थोड़ा सा घूम के आते हैं, हम देख के आते हैं क्या होता है यहाँ पर। सो स्टार्ट डेट मांग रहा है, ये स्टार्ट डेट कब की थी? देखिए आपकी स्टार्ट डेट आपने बताया था 15 जून की है, तो स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आप मेंशन कर सकते हैं वहाँ पर जा करके, ये हुआ 15 जून। अच्छा रहेगा अगर यहाँ पर भी सेट कर दें तो, ठीक है। प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट सेट हो गई आपकी, स्टार्ट डेट, ठीक है। कैलेंडर पे देखिए बाय डिफॉल्ट ये स्टैंडर्ड को पिक कर रहा है अभी भी। सो यहाँ जाके क्या करना होगा आपको गाइस, आपका वाला नया कैलेंडर प्रोजेक्ट 1 ईपीसी, सो दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट 1 ईपीसी कैलेंडर यू हैव टू सेट, ओके सेट नाउ। Now you can see the calculation and the dates have been changed. Okay, for your better understanding, let me say no 7 days का delay 2 तो देखिए 15 जून से लेके 24 जून तक 10 दिन होते हैं, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। और वेरी नेक्स्ट डे मतलब ए खत्म होने के जस्ट बाद नेक्स्ट डे से बी शुरू हो गई है। क्यों शुरू हो गई है? क्योंकि 2 हमने दिया हुआ है, और अगर आपने यहाँ पर कर दिया 2FS, 2FS मतलब 2 फिनिश टू स्टार्ट प्लस 1 डे, तो जहाँ 25 जून दिखाई दे रहा है देखिए मैं एंटर करते ही 26 जून हो जाएगा, राइट? ठीक है जी, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो परफेक्ट, ओके आगे चलता है। सी एक्टिविटी मेरी कुछ इस तरह की एक्टिविटी, अब डिपेंड करता है आप किस तरीके से मैप करते हैं, किस तरीके से लॉजिकल रिलेशनशिप आपकी बैटरी है। ये तो हमने सैंपल के तौर पर ए बी सी डी ई 5 एक्टिविटीज को ले लिया है। यहाँ पर चलिए मैं मान के चलता हूँ कि द टाइम बी इज गोइंग टू स्टार्ट द सेम टाइम सी विल बी स्टार्टेड, ऐसा मान लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं दूंगा 3SS। 3SS क्यों भैया? 3SS इसलिए टाइम थर्ड नंबर का एक्टिविटी, थर्ड नंबर का कौन सा है? बी, राइट गाइस, दिस वन। द टाइम 3 नंबर का एक्टिविटी इज गोइंग टू स्टार्ट द सेम डे सी एक्टिविटी भी स्टार्ट होगा। 26 को चालू हुआ, ये भी 26 को चालू हो गया, नो प्रॉब्लम, परफेक्टली ओके गाइस। चलो आगे देखते हैं। डी एक्टिविटी का रिलेशनशिप कुछ इस तरह का है कि बी जिस दिन चालू होता है उसके 4 दिन के बाद चालू होगा, से सपोज दैट, या जिसके साथ भी रिलेशनशिप आपका जिसका मन कर रहा है उसके साथ रिलेशनशिप लगा देते हैं, फिट कर देते हैं, चलो ठीक है। अच्छा आप बोल रहे हैं कि सी के साथ, ठीक है ओके, तो सी नहीं लिखना है यहाँ पर लिखना है सी का आईडी 4SS प्लस 5 डेज, 5 दिन के बाद चालू हुआ, तो 26 और 5 29, तो ये 29 30 से चालू हो जाएगा, ठीक है।
चलिए इसके साथ में भी रिलेशनशिप लगा देते हैं कि भैया डी खत्म होने के बाद ही ए चालू होगा। इस और डी की जो वो है 5, तो 5 किया तो ये हो गया इस तरीके से। अच्छा ये बहुत बड़ा दिखाई देगा अगर आपको गैंट चार्ट, तो इसको छोटा करने के लिए, विजुअल करने के लिए थोड़ा सा यहाँ से रेशो सेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें देखिए एक्सेल में सेम टू सेम होती हैं। सो द वे वी आर डूइंग इन एक्सेल, द वे वी कैन मेक सम ट्रिकिंग, थोड़ी स्मार्टनेस दिखाइएगा। या दैट्स राइट। So the project first activity is going to start here. You can see here. It is going to finish here. इसके जस्ट फिनिश होने के एक दिन के बाद ये चालू हो रही है B, और B जब शुरू हो रही है उसी दिन आपकी C चालू हो रही है, और C जब चालू हो रही है उसके 5 दिन के बाद D चालू हो रही है, D जब खत्म हो रही है उसके बाद आपकी E चालू हो रही है। This way, this is a very simple and rather I should say sample program we are able to develop. आप खुद करके देखिए एक बार, नहीं समझ में आने से यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल आईडी और माई फोन नंबर, यू कैन सेंड सम व्हाट्सएप मैसेज एंड ऑल, ठीक है। अच्छा कभी कभी आपने देखा होगा क्रिटिकल पाथ के बारे में काफी लोग पूछते हैं क्रिटिकल पाथ कैसे देखना है। क्रिटिकल पाथ देखने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बहुत आसान है। चलिए मैं चल के दिखा देता हूँ आपको। व्यू में जाना है, देखिए प्रोजेक्ट में थे हम लोग, राइट। व्यू में जाना है, व्यू में जाने के बाद यहाँ देखिएगा हाईलाइट करते हैं, हाईलाइट में जाइएगा, यहाँ पर क्रिटिकल को क्लिक कर दीजिए, जो भी क्रिटिकल एक्टिविटी होंगी वो सारी हाईलाइट हो जाएंगी। अरे ये तो सारी क्रिटिकल एक्टिविटी हाईलाइट हो गई, चलो ठीक है। ओके हाईलाइट को हटा देते हैं, नो हाईलाइट कर देते हैं। ये क्रिटिकल एक्टिविटीज का चक्कर क्या है, क्रिटिकल एक्टिविटीज होती क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा। क्रिटिकल एक्टिविटीज कुछ नहीं होता है। क्रिटिकल एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज बेसिकली वेयर यू आर हैविंग जीरो मार्जिन। जीरो मार्जिन का मतलब जीरो फ्लोट, जीरो स्लैक। अच्छा फ्लोट बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, और मतलब प्राइमरीरा में भी फ्लोट ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे केस में, हमारे एमएसपी के केस में एमएसपी उसको स्लैक बोलता है। चलो ठीक है, एक कॉलम होता है उसको मैं आपको इंसर्ट करके बता ही देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। तो टोटल स्लैक, ओके गाइस यू कैन सी हियर, यहाँ पर स्लैक दिखाई दे रहा है। अरे ये स्लैक को लास्ट में कर दो यार पहले, चलो ठीक है लास्ट में कर दिया, इसको थोड़ा खिसका देते हैं इधर, दिस वे। ये सब कुछ एक्सेल के जैसा मूव करता है, माउस से पकड़ के स्मैश कर सकते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, मैं दिखाना चाहता था आपको कुछ, मैं इस तरीके से दिखाना चाह रहा था कि कोई ऐसी एक्टिविटी भी होनी चाहिए जो कि ओके इसको मैं किसी और के साथ लिंक कर देता हूँ। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। इसको मैं 5 नंबर जो ई एक्टिविटी है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं ऐसा करके पर्पसली ऐसा कर रहा हूँ कि फ्लोट कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट दिखाई दे आपको, और कुछ नहीं। तो ये अभी 5 के साथ कनेक्टेड है, मैं इसको 4 के साथ कनेक्टेड कर देता हूँ, 4 एसएस कर देता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, इसको भी सेट करते हैं हम। बी के साथ अभी ये 4 के साथ है, इसको भी मैं 3 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ओके थोड़ा सा चेंज किया सो दैट यू कैन सी। अच्छा ये सी के साथ किसी का रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रहा है, तो सी के साथ एक काम करते हैं, सी का सक्सेसर नहीं दिखाई दे रहा है, गौर से देखिए यहाँ पर सक्सेसर कॉलम में देखिए। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि सी का आईडी जो है 4 है, तो कॉमा लगा के 4 लगा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है गाइस। तो सभी का सक्सेसर वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा है और काम दिखाई दे रहा है। जो गौर करने वाली बात है, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जो ट्विकिंग की मैंने लास्ट मोमेंट पर, वो इसके लिए किया है कि यू कैन सी फ्लोट कहाँ पर है। फ्लोट का गुंजाइश जो हम बात कर रहे हैं वो जीरो है। ए एक्टिविटी का फ्लोट या स्लैक जीरो है, इसका मतलब ए एक्टिविटी अगर एक दिन भी शिफ्ट होती है तो फाइनल जो आपकी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट है, मतलब जो ये है 25 जुलाई, वो शिफ्ट हो जाएगी। मतलब जीरो गुंजाइश, जीरो मार्जिन you are having in this activity. That is why we can say A activity is critical. So wherever you can see the float is zero, those activities are known as critical activities. लेकिन एक एक्टिविटी ऐसी भी जहां पर फ्लोट जीरो नहीं है, 15 एक्टिविटी नंबर सी
इसमें फ्लोट दिखाई दे रहा है 15 डेज, मतलब ये हुआ कि 15 डेज की गुंजाइश है इसके पास, 15 डेज की फ्लोट है इसके पास। 15 दिन तक भी अगर ये, मतलब इसका बफर है 15 दिन का, 15 दिन अगर डिले होती है तो भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा। 16वां दिन जैसे ही होगा तो आपकी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट जो है वो शिफ्ट होना चालू हो जाएगी। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट सी एक्टिविटी इज नॉट a critical activity. You don't need to focus on C. You need to focus better on A, B, D and E. Right? One more thing. अगर आप यहाँ पर जाकर के हाईलाइट करवाते हैं आप क्रिटिकल एक्टिविटीज को, तो देखिएगा सिर्फ कौन सी क्रिटिकल एक्टिविटीज जितनी भी थी वो सारी हाईलाइट हो गई हैं। फिलहाल मैं हटा देता हूँ इसको, नॉर्मल कर देता हूँ इसमें। राइट गाइस, चलिए, तो इस तरीके से आप अपने सैम्पल प्रोग्राम को डिफाइन कर सकते हैं। हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से की मदद से आप, मैं समझता हूँ कि ऐसी मेरी उम्मीद है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर जरूर हुई होंगी। और डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गेट योर फीडबैक्स। कहीं पर भी आपको समस्या होती है तो डायरेक्टली यू कैन कम्युनिकेट टू माई सेल्फ। थैंक यू वेरी मच गाइज।